funnel strategy, that's a very, so that's one of the very basic I would say a thing to do in the life when you sometime become, get correlated with the digital media and start buying media, and you get a brief from your one of your client, or you are, and then you are getting so okay. So one thing is, if you want me to repeat anything, just stop me then and there, and okay. So don't get it going and getting overwhelmed out of it. So if anything becomes more technical, stop me there. And if you approach is, there are particularly three funnels, okay, we are talking about the top funnel. So the top funnel is primarily related to the brand awareness and the and the talkability and the qualitative analysis of the brand, and so what's your I would say brand recall rate and recall and etc etc. There are multiple multiple KPIs to gauge. Some of my clients I'm working with the upper funnel, and some are with mid funnel, and some are with the bottom funnel now. So when it comes to the top activity, as you can see, what we basically try to do is, we try to reach with the communication whatever we have from the client. We try to reach to the optimum frequency and collecting the audience data signals from it. So what I mean by okay, I mean by collecting audience data signals. So normally many clients are skeptical with this view that if they'll be doing, or many brands are skeptical with this view that if they'll be doing their professional or top funnel campaigns, they won't be able to do sales. However, the main story here is, if you will be doing something related to the upper funnel and the top funnel, you'll be like reaching out to the to a greater chunk of the audience with a better frequency. What that will be doing for you, basically getting the audience data in what form, basically. Can you just, anyone can answer me in what form that audience data will be there? Those data, basically. So I'll be writing down some of the data things here as well. But let's I would like that someone take me through that as well from you guys. Anyone? So my question, yeah. Data as written in the format, is that what you're asking? Yeah, basically in what format that data is. So when you are reaching someone in your like upper funnel campaigns, in what format the data is created, basically. Any rough any rough any rough format you can remember of it. So okay, so never mind. So whatever the data that is created during your campaign or while your campaign on the native platform, sort of publisher. With publisher I mean the newspaper, talks about what will happen if there will be no cookies, and how we'll be able to retarget, and etc etc. So I'll be coming to the when I'll be discussing the GA4 thing with you guys. So for now, let's again get back to that. Okay, so during like discussing the activity of the top funnel campaign is like I have brands like Foodpanda, National, Zong, Mondelez, Frislina, Friesland, Campaigna, HBL, Angro Corp, Dawlance, Visa, Telenor, and Nestle, and the list goes on, basically. So some of these clients are primarily doing business with us for the upper funnel. For the upper funnel, I mean the top funnel. Top funnel, that is brand awareness thing. If we see the KPIs for that, that is like dedicated to the cost per thousand impression, that is the CPM, and things related to the reach and average frequency, and the brief might be something like that. Okay, so we want to reach X number of people with the X number of frequency. So for example, we want to reach 100,000 people with a frequency of 6. So what will be the total impressions for that campaign?
Simple, 600,000, right? So you'll divide the frequency by the number of reach, you'll get a total impression for the campaign. So, and again, so those people, that 100,000 people that you are reaching with your upper funnel, I would say upper funnel campaign or top funnel campaign, that is your data that is being created. These are the audience signals that you can use afterwards. I'll tell in the next slide how you are going to bifurcate these audience signals and how you can use them basically. Yeah, any question? Anyone wants to? Okay, never mind. So moving on to the mid funnel thing. So mid funnel is also kind of consideration funnel. Okay, so it's like you reach X number of amount of people. You reach like 100,000 of people, and you have reached them with a frequency of 3 or 4 or 6, and now you want them to act on whatever you want them to. Right? For example, you want them to watch your TVC or DVC for a good length of 30 seconds or a good length of 10 seconds or 15 seconds. So again, that's a consideration thing. So one thing you did in the upper funnel is you reached out to them with that specific communication on their feeds, for example, like Facebook or YouTube. Now you want them to see that campaign communication for a okay. So your optimization strategy, your bidding strategy here changes. So for example, while we were bidding for CPM in the upper funnel, we'll change our bids to CPV in the bottom funnel. So what's the difference between CPM and CPV? So they are charging on, CPM is charging on the impressions, however, CPV is charging on the views basically. So by CPV, I mean that let's suppose you are running a campaign on YouTube and you want to, so there are two types of video campaigns on YouTube. The one is VRC, that is video reach campaign. And the other is the view campaign, the true view campaign that is optimized on CPV. Can anyone tell in what after seconds basically YouTube charge you for a view? Can anyone, just a rough guess, I would say. Please, I want everyone to answer this one. Yes, Ahmad, Arfa, Azim, Fizza, Hamza, Murad, anyone? Yeah. I think 30 seconds. Who's that? Ahmad. Ahmad Shahir. Reckitt is actually responding in chat. Okay. I just have okay, fine. Okay, so CPV is a question. Okay, so question is, after how many seconds are you? Ahmad Bukhari is actually correct. It's 30 seconds. Yeah. So when it comes to the view, and again, the rate of YouTube is quite low actually, again, for like, view campaigns, normally media planners, first, the view of Facebook is actually a little expensive than YouTube. Secondly, Facebook does not charge you with that 30-second thing. Okay, Facebook charge you with that with 10 seconds or 15 seconds, so you can optimize between them. That is called cost per through plays for Facebook. So you can actually, this is mentioned in the KPI thing as well here, if you can see. So for KPI, for a video campaign, I would say can be CPV or cost per through play. But if I want something else as well, and there's a link, I want people to go out, I want people to generate some traffic out of it. So I will definitely CPC campaign. Okay. So what's a CPC campaign again? So there's a discussion in it that either people like are actually, are the or
They are the sales campaign. So will someone like to answer this question as well? So is the PPC campaign people are running for sales on Google, are the consideration campaigns, or are these the sales campaign? What are they? You guys can write again. I've just opened the chat. I guess it's consideration. Yeah, it's actually consideration, because you're not actually confirming. You're not basically Google charge you for a traffic. Okay, so either it's not even the lead. For traffic, what do you say? Okay, so I clicked an ad on Google, and then I generated traffic on their website, on some brand website, and then I actually gave my cookie to that website, my data to that website, tracking the cookies, which will be deprecated by 2024, I would say, by virtue of Google Chrome. That actually gains a largest amount of browsing, that is 65%. Well, okay, so when I say CPC is actually a consideration thing, that bit is the cost per click thing. You basically 10 people to generate traffic to your website, simple as that. And then there are other consideration objectives as well. For example, this cost per lead that Facebook actually Facebook can actually there is a ad format which is off the page, that is a lead, basically Facebook leads, and this is a very simple format, very cheap actually, but again they are not quantifiable leads, very much a bad chunk in it actually, so highly not recommended. Let's move to the bottom funnel. So what is bottom funnel correlated to? You guys can actually read the reading slide as well. So optimizing sales campaign focus on conversion media objective for the lowest CPIs and highest ROS. So CPA is, that is cost per acquisition, CPI is cost per installs, and highest ROS is return on ad spend, basically. Okay, let's discuss all the metrics here as well. So when I say bottom funnel, or when I say a sales campaign, so I am optimizing my ad for people, for my audience to, and I really want them to actually purchase something from my website. How do I do it? Okay, so let's firstly talk about a normal product, that is like, let's say, a watch, maybe. And for a watch, I want people to purchase that watch, and I'm optimizing my campaign from those three objectives I have on Facebook. That is, maybe I can catalog sales, or is everyone familiar with the Facebook boosting objective? Okay, nice. So there's a conversion objective as well on Facebook. So in the conversion objective, okay, Ahmed, so there are like certain objectives in Facebook. I'll open my dashboard, and I'll just show it to you now. Just a moment, just give me. Is anyone else who have no idea about the Facebook dashboard, posting dashboard? Okay, Ahmed and Murad actually. So Ahmed and Murad, I really want you guys to just see it. Maybe I might not be able to take you through in a very detailed thing, but for sake of this this master class, let's open it. Sandeep, did you change your screen? I'm just opening another screen. I'm just sharing in a while. Just a moment.
Okay, so now it's visible. Okay, guys, so this is a Facebook ads dashboard, and these are the very basic thing actually to for this master class actually. So these are three objectives which you are which you have to choose from. Okay. So these are three objectives which you have to choose from. Okay, so when we talk about the bottom funnel, right? So we have to choose this actually. We have to, in this sales objective, there are three objectives which normally I work for. That is the catalog sales and the conversion. So conversion is basically so in the test events. In the event section of Facebook, you can actually, what you can do is you can optimize for certain events, and these all of those events can be listed as a conversion event. So there are primarily 4 conversion events, that is add to cart, or I would say that let it be maybe an item viewed, maybe, or something like that, and then add to cart, and then checkout, and then purchase. Okay, so these 3 main events are listed as purchase events in Facebook or in amount of rated divided by amount of if you generated a sales of 1 lakh rupees and your budget was 10,000, right? So the reverse will be 10, right? So basically you have been able to generate a sales of 1 lakh rupees from a given budget of 10,000, and you have achieved a reverse of 10. So that's actually what we call a return on ad spend. Some KPIs are purchase, sorry, yeah, purchases, checkouts, maybe add to carts. You can optimize for each of them. I usually do when I usually optimize for sales. Sorry, just thank you. I've seen this in Google Ads too. Thank you for that. Okay, no problem. I'm sorry. Okay, so when get along with the how I used to do is I normally like in the earlier part of the campaign, or I would say in the earlier stages of the campaign, and I know that for a fact that a sales campaign, I never used to optimize it for hardcore purchases. So what I used to do, or I used to do is I optimize them for the upper funnel in one ad set, and in the second ad set, what I do is I actually optimize, my campaigns for maybe for, let's suppose, content, item views or landing page views. So what it do is it generate a good amount of data for me to optimize it for the final purchase campaign, like creating the lookalike audiences and etc. There are multiple type of audiences. We'll talk about the audiences in the next slide as well, and there's a whole campaign structure. Let's switch it now as well. These converts before pattern understanding. Acha. Okay. So
with obviously with approval from the Link Star team. Yeah. Yes, of So course. Link Star team, yeah, Or definitely can I very switch to sure. Urdu? Yes, of course. कोई मसला नहीं है, फिर उर्दू में समझाते हैं. ओके गाइस, उर्दू में स्विच हो जाते हैं इसमें. ये दूसरी साइड जो है वो बेसिकली ये कह रही है कि किस तरीके से आप अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हाई वैल्यू के लिए. जो अभी तक इतनी सारी बातें करी हैं डिफरेंट फनल्स की, और उसके बाद फिर हमने बात करी है कि किस तरीके से जो है हम समझ लें कि कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपर फनल और फनल के लिए. सो दिस स्लाइड कैन यू नो solve a lot of problems. जो भी आप little, sorry for that, let's put it here. Okay. Is my screen clearly visible to all of you? Yes, we can see it. Okay, so starting from the very basic. So हमने क्या करा, हमने एक कैंपेन लगाई, हमने मेटा पे, गूगल पे या टिकटॉक के ऊपर अपनी कैंपेन लगाई. और तो थर्ड पार्टी एप्स का मतलब यह है कि आपकी जो IMO हो गया या स्नैक वीडियो हो गया, या फिर आप कह लें कि स्पॉटिफाई हो गया, ये वो एप्स हैं बेसिकली जो बहुत ज्यादा आपको लेवरेज नहीं देती परचेजेस का या कन्वर्जन के हवाले से सही देती है. However, that's not the case with the platforms which are mentioned above. Okay, so DB360 is basically a double click manager. DB360 जो है वो एक प्लेटफॉर्म, एक का समझते हैं एक डिमांड साइड प्लेटफॉर्म है. डिमांड साइड प्लेटफॉर्म ये होता है कि आप मल्टीपल एक्सचेंजेस को, सो फॉर एग्जांपल डेली पाकिस्तान है, हमारी वेब है, तो हमारी वेब पे स्क्रीन पे हमारी वेब की वेबसाइट के ऊपर आना है, तो आप हमारी वेब की वेबसाइट पे अपने हिसाब से और अपने सेट किए हुए बजट के मुताबिक और अपने किए हुए इम्प्रेशन की रेट के मुताबिक बजट वहां पे उनको ऐड दिखा सकते हैं जो भी यूजर हमारी वेब के ऊपर मौजूद है. ये जो होते हैं नॉर्मली गूगल एड से. ओके, सो द डिफरेंस इन बिटवीन क्या होता है, अपने बहुत सारे जो समझ लें कि ऐड स्पेसेस है वो लॉक किए हुए होते हैं, आप उनसे उन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते. तो उसके लिए आपको एक बीच में एक DSP की जरूरत पड़ती है. तो वो DSP DB360 और भी बहुत सारे DSP मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए. सो खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकल डिटेल्स ऑफ इट, और इफ समवन वांट्स आई कैन गेट इनटू टेक्निकल डिटेल्स एज वेल. ओके, सो हमने कैंपेन लगाई. कैंपेन का हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम अपनी एक brand.com वेबसाइट है XYZ जो भी है, वहां पे हम ट्रैफिक को राउट करें. सही है, ये कंसिडरेशन कैंपेन क्या है इसको एक तरह से. तो हमने क्या करा, हमने सॉरी ओके आरफा, योर माइक इज अनम्यूटेड, कैन यू प्लीज जस्ट. जी आरफा, आपका माइक म्यूट है, आप इसको, जी थैंक यू सो मच. सो हमने brand.com वेबसाइट पे राउट करा ट्रैफिक, और उसके बाद वो ट्रैफिक जो था उसको हमने क्या करना था. अब यहाँ पे अब दो चीजें हैं. पहली बात ये है कि हो सकता है कि हमारी brand.com वेबसाइट के ऊपर जो भी हमारी है वहां पे हमारे पास हम सेल्स ना कर रहे हो वहां से डायरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ले लें आप, रैकेट की एग्जाम्पल ले लें. रैकेट जो है उसकी वेबसाइट तो है, लेकिन वो अपनी वेबसाइट पे सेल नहीं करता. वो जब आप बाय नाउ का बटन दबाएंगे तो आपको वो राउट करेगा अपने ई-कॉम पार्टनर्स की तरफ, जो कि हो सकते हैं क्रेव मार्ट में भी, दराज या पांडा मार्ट के ऊपर जो है, और के मार्ट के ऊपर डायरेक्टली आप जो वेबसाइट से राउट हो जाएंगे इनमें से किसी एक ई-कॉम पार्टनर की तरफ. तो होता क्या है यहाँ पे कि जब आप चेकआउट करते हैं और यहाँ पे राउट करते हैं, और ये एक सिनेरियो है. दूसरा सिनेरियो क्या है कि वहीं पे आप अपने जो वेबसाइट के ऊपर ही जो फॉर एग्जांपल मेड इजी की वेबसाइट जो कि जिसमें नेशनल फूड अपना सारे मसाले जो है वो बेचता है, वहाँ एक अपना वहां पे जाके एक मसालों का बंडल खरीदते हैं और उसके बाद फिर चेकआउट करते हैं, आप वहीं पे ही परचेज करते हैं. वो आपको किसी और ई कॉमर्स पार्टनर की तरफ जो है वो शिफ्ट नहीं करते. तो वहां पे जब आप परचेज करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट कि वो चेकआउट की जर्नी कैसे होती है. तो होता क्या है कि जब आप वहां पे चेकआउट करते हैं तो वहां पे क्या लगा होता है, उनकी वेबसाइट पे पिक्सल लगा हुआ होता है. फेसबुक का पिक्सल जो है वो एक समझ लें एक बैक एंड HTML का कोड होता है छोटा
छोटा सा, जिसके थ्रू वेबसाइट का जो ट्रैफिक है और उस पर जो इवेंट्स होते हैं वो ट्रैक हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट पे गया और मैंने लेट्स सपोज नेशनल की वेबसाइट से एक मसाला खरीदा, तो अब उस मेरा जो डाटा है, बेसिकली मेरी जो ये जर्नी है ये ट्रैक हो रही है हल्की हल्की करके। मैं कहाँ पे गया, मैंने कितनी देर वेबसाइट पे स्टे करा, और मैंने कितना जो है वो समझें कि कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे, और उसके बाद मेरा नंबर वगैरह भी आता है। इनफैक्ट नंबर, क्योंकि मुझे जब चेकआउट करना है तो मुझे नंबर डालना पड़ेगा, राइट, और नंबर के साथ मुझे अपना एड्रेस भी डालना पड़ेगा, ईमेल भी डालना पड़ेगा, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं टू ट्रैक माई ऑर्डर। तो होता क्या है कि वो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रैक हो रही होती हैं। तो होता क्या है कि जब आपकी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं तो एक डीएमपी होता है, डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे कि ये फेसबुक पिक्सल है, फेसबुक पिक्सल के साथ साथ आपके पास गूगल रिमार्केटिंग का टैग भी लगा हुआ होता है। तो लेट सपोज अगर आप गूगल पे भी ऐड रन कर रहे हैं और फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं, तो फेसबुक से कुछ कस्टमर्स आए, कुछ कस्टमर्स गूगल से आए, तो दोनों प्लेटफॉर्म से जो भी कस्टमर आए वो आपके ट्रैक हो गए। फेसबुक वाले कस्टमर्स पिक्सल से ट्रैक हो गए, गूगल वाले कस्टमर मार्केटिंग टैग से ट्रैक हो गए। उसके बाद क्या किया कि हमने, लेट सपोज मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, डाटा डाटा की कंपनी हूँ, या मैं एक बहुत बड़ी मीडिया एजेंसी हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने एक डाटा वेयर हाउस बनाया हुआ है। वो डाटा वेयर हाउस क्या कर रहा है, वो डाटा वेयर हाउस कनेक्टेड है मेरी वेबसाइट से, और मेरे जितने भी ये मेरे पिक्सल और मार्केटिंग के टैग्स लगे हुए हैं इनके साथ, वो क्या कर रहा है, कस्टमर का डाटा अपने अंदर जो है वो स्टोर कर रहा है कि कौन कौन से कस्टमर का फोन नंबर क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो उसे मसाला कितना वो खरीदा है पिछले 6 महीने में, और मल्टीपल और भी तरह के डाटा सेट जो कि बन सकते होंगे। मतलब यू नेम इट, एंड जो बाइफरकेशन जो टेक्सोनॉमी होती है उसकी, हमें उसमें अवेलेबिलिटी होती है ये वाली चीजें ट्रैक करने की। उसके बाद हमने क्या करा, वंस वो डाटा बन गया, फिर हम क्या करते हैं, उस डाटा के सेगमेंट्स फॉर्म करते हैं, सही है, उन डाटा की सेगमेंटेशन होती है। जैसे कि हम कस्टम ऑडियंस लिस्ट, रिमार्केटिंग लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंसेंटेड का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करा है क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे जो है वो इश्यूज हैं, प्राइवेसी के इश्यूज हैं। बैंक का फॉर एग्जांपल डाटा होता है अगर, और बैंक कस्टमर्स को आपने जो है वो अगर किसी पीआईआई के थ्रू मतलब रीच आउट करना है, तो वो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बैंक के लिए तो सब कुछ उसका कस्टमर है ना, तो उसका डाटा तो बहुत ज्यादा एक प्राइवेसी और बड़ी सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर होता है। तो दैट्स व्हाई इट डजंट मैटर। तो कंसेंटेड पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, पीआईआई कहते हैं इसको। ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं सुनने में देखने में मिलेगा। तो पीआईआई का मतलब क्या होता है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। इट कैन बी ईदर योर फोन नंबर, इट कैन ईदर बी योर ईमेल और व्हाट्सएवर। ये फर्स्ट पार्टी डाटा होता है। और अभी मैं डाटा आपको यहाँ पे अगली वाली एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूंगा, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से डाटा के अंदर बेसिकली फर्क क्या है, और कौन सा वाला डाटा जो है वो कौन सी वाली कुकी थ्रू जो है ना वो आप पोर्ट कर रहे होते हैं। वी हैव अ लिटिल लो टाइम, ओके, सो एक मिनट, सॉरी, मैं कोशिश कर दूंगा जल्दी जल्दी जो है वो इसको रैप करूँ इस वाली स्लाइड को। तो होता क्या है कि जब आपने डाटा वहां पे स्टोर कर लिया, और इवन कि आपके डीएमपी की भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, फेसबुक पिक्सल और गूगल की मार्केटिंग टैग्स के अंदर आपको फेसबुक को गूगल ये चीज जो है वो इनेबल करता है कि आप मल्टीपल सेगमेंट्स जो है वो फॉर्म करें डाटा के। तो या तो आप मुझे एनएफएल या कह लें रैकेट जो है वो एक लिस्ट दे दे अपने कस्टमर्स की, और वो मुझे बताए कि आप ये मेरे कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आपने क्या करना है कि इनको टारगेट करना है या इनको जो है वो तो मैंने क्या करना है, वो लिस्ट जो होती है मैं अपने फेसबुक को दूंगा या गूगल पे अपलोड करूंगा सीएसवी फॉर्मेट के अंदर, और उससे मैं एक कस्टम ऑडियंस जनरेट करूंगा। उस कस्टम ऑडियंस की मैं ये भी कर सकता हूँ कि लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकता हूँ। So here what I'm talking about, for example, अगर मैं बात करूं मैं दूसरी वाली, ओके, सो here it is। so हुआ क्या कि मुझे एक पीआईआई के लिस्ट दी रैकेट ने, लेट्स सपोज, उसने बोला कि मुझे ये इनको टारगेट करना है। मैंने क्या किया, आई अपलोडेड देम फेसबुक, गूगल इन सीएसवी फॉर्मेट, जो उसका फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है, सही है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब वो अपलोड करी गूगल या फेसबुक के अंदर, सॉरी, तो उसके बाद गूगल ने क्या किया, मुझे कस्टम ऑडियंस बना दी उस लिस्ट की मेरे पास। ये वो बेसिकली ये वो लोग हैं जो उन नंबर और उन ईमेल्स के, ओके, सो पीआईआई जो थी वो या तो फोन नंबर थी और ईमेल एड्रेसेस।
उससे क्या कस्टम ऑडियंस बने, उस कस्टम ऑडियंस से मैंने मजीद लुक अलाइक ऑडियंस बना ली। सो दिस इज अ होल जर्नी। और उसके बाद मैंने इनको इस वाली जो ऑडियंस मैंने बनाई है दोनों, ये कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस, मैंने इनको क्या किया, मैंने एक एड सेट के अंदर क्लब किया और मैंने इससे कैंपेन रन कर दी। तो दिस इज ऑडियंस की जब हम बात करते हैं तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर हुई हुई थी ऑडियंस हर उसके अंदर। सो देयर आर मल्टीपल लेयर्स व्हिच कैन बी एडेड एज वेल, जो कि यहाँ पे मेंशन है ये वाली स्लाइड के ऊपर, कि हाई वैल्यू ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल तो हाई वैल्यू ऑडियंस मेरे पास, लेट्स सपोज मैंने एक सेगमेंट बनाया है जो कि हाई वैल्यू ऑडियंस का सेगमेंट है, जिसमें 3 सब सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट है टॉप 5% टू 15% परसेंटाइल ऑडियंस है बेसिकली। ये मेरी वो ऑडियंस है जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, और ये वो ऑडियंस है जो कि 5% ऑडियंस है। ये किस बेसिस पे निकला है? ये मेरी फ्रीक्वेंसी और रिसेंसी की बेसिस पे निकला है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 3 महीने में वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मेरी वेबसाइट को लेट सपोज दिन में 2 दफा विजिट करा है। तो अब वो मेरी ऑडियंस जो है ना, अब और वो सारे के सारे उठा के मैंने फेसबुक ने क्या किया, वो टॉप 5% में डाल। तो क्या किया कि वो डिसेंसी और जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी जनरेट करी मेरी परसेंटाइल ऑडियंस, जो कि टॉप 5 to 15% है। ये वो ऑडियंस है जो मेरी वेबसाइट को बार 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 रिपीटेडली विजिट कर रही है। मैंने इसका एक सेगमेंट बना दिया। उसके बाद मैंने दूसरे पे किया, मैंने एक और सेगमेंट बनाया कि व्यूड आइटम्स 4 और 5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑडियंस। फॉर एग्जांपल कि मेरे अगर मैंने कोई आइटम लिस्ट करे हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वैसे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वो आइटम्स को जो है वो मल्टीपल टाइम्स व्यू करा है। अब दिस कैन गो मे बी ये आपके ऊपर होता है कि आप 4 से 5 दफा कर रहे हैं, 10 दफा कर रहे हैं, जितनी भी आप इसको इसकी आइटम व्यू की कह लें कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा ऑडियंस नैरो होती रहेगी। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना जितना क्लोज जाएंगे ऑडियंस के, उतनी नैरो ऑडियंस। फिर मैंने इवेंट बेस्ड ऑडियंस भी बनाई हुई है अपने पास। वो ऑडियंस कौन सी है? बेसिकली जो चेकआउट ऑडियंस इसने करी है। ओके, सो वो ऑडियंस जिसने बेसिकली चेकआउट करा हुआ है, और ये वो ऑडियंस है जिसने परचेज नहीं करा, मतलब कि उसने सारा मेरे जो भी ई कॉमर्स के इवेंट्स थे वो उसने पूरे करे, उस मेरी वेबसाइट पे आया, मेरा प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा, और उसके बाद चेकआउट जो है ना वो नहीं करा, और चेकआउट मतलब चेकआउट तक जो है वो कर गया, और उसके बाद लेट्स सपोज उसने फाइनल में भी कुछ डाला नहीं। तो अब वो मेरी ऑडियंस, मैंने क्या किया, मैंने क्लब करा उस ऑडियंस को, और मैंने एक अपनी हाई वैल्यू ऑडियंस बना ली फॉर रीटारगेटिंग पर्पसेस। सो वेयर इज दिस ऑडियंस गोइंग बेसिकली? ये एक एरो दिख रहा है यहाँ पे लिखा है कि डाटा सेगमेंट्स आर शेयर्ड बैक टू द नेटिव प्लेटफॉर्म्स बाय बीइंग टैग्ड एज हाई 10 और हाई ट्रेड्स एंड इंटरेक्शन हिस्ट्री। तो हुआ क्या कि ये सारी जो मैंने ऑडियंस बनाई हुई है, ये सारी ऑडियंस मैंने उठा के वापस भेजी अपने मेटा को, गूगल को, कि इसको रिटारगेट करके मेरी वेबसाइट पे लेके आओ। सही है, क्योंकि कुछ अरसे तक की तो ऑडियंस थी मेरे पास, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद ऑडियंस। तो मूविंग ऑन टू द कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सो अगेन हम बात करते हैं दो तरह की कैंपेन्स के बारे में। एक ट्रैफिक कैंपेन के बारे में बात कर लेते हैं, और एक कन्वर्जन कैंपेन के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम ट्रैफिक कैंपेन्स के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स सपोज मैंने वो ऑप्टिमाइज करना है। ये सारी सपोजिटली assumptions हैं, यू गाइस कैन एक्चुअली just intervene in here as well, and you guys can ask any question, any specific thing you cannot understand in this slide, so that I can explain it to you. सही है जी। तो दिस इज एन ओपन फोरम, प्लीज प्लीज वापस सवाल करें, ताकि आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही तो उसका जवाब मिले। सही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ये करके उसके बाद में आपको सवाल लेता हूँ। ट्रैफिक कैंपेन है जी, और कन्वर्जन कैंपेन। और ट्रैफिक कैंपेन आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर लर्निंग पेज व्यूज। व्हाई बेसिकली एंड हाउ, बेसिकली इनेबल कैसे कर रहा हूँ मैं लर्निंग पेज व्यूज? what are the तो ingredients to make audiences you prefer target for target having purchase? Okay, so very good question, Azim. Azim, I would really I admire if you can just ask it by unmuting your mic, and इसको simplify करके पूछें, ताकि बाकी को भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए एक एक करके। जी अजीम।
Unfortunately, mic is not working. अच्छा, एक काम करें. Taqi, I have a question. जी जी Can I जी go जी. ahead with it? Yeah, please. Acha. I wanted to ask you, how can we set like target audiences for different businesses? For example, if I have a business of t-shirts, basically graphic t-shirts, so uski hum audience kaise set karenge? What would be the target audience for that? ओके, देखें, ये एफिनिटी ऑडियंस की गलबन आप बात कर रही हैं, तो पीपल देयर आर सर्टेन एफिनिटीज विच इज डिफाइंड प्री डिफाइंड बाय गूगल एंड फेसबुक बोथ. एक्चुअली आई हैव अ रिसेंट डाटा. मैंने कुछ डाटा इनसाइट्स निकलवाई थी गूगल से. तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट ऑफ एफिनिटीज दी थी. मैं एक काम करता हूँ, मैं वो लिस्ट ऑफ एफिनिटीज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. Just a moment. Let me open that Excel file. I have saved that file in the Excel sheet. तो आप जिस ऑडियंस की बात कर रही हैं, बेसिकली ये प्री डिफाइंड ऑडियंस होती है, अनलेस कि कोई कस्टम ऑडियंस हो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर आपके ट्रैफिक जनरेट हुआ हो और उसके बाद आपको रिटारगेटिंग करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर आर कस्टम ऑडियंसेस. Sorry, high value audiences in Meta. Okay, so Ahmad, there are multiple ways of segmenting high value audience. It certainly depends कि तुम्हारी high value audience या आपकी high value audience जो है वो आप इसको आप define कैसे कर रहे हैं. What's high value for you? For example, अगर मैं कोई upper funnel वेबसाइट है तो मेरे लिए high value चीज जो है वो ये है कि let's suppose मेरी वेबसाइट को जो है कोई 50 दफा विजिट किया होगा किसी ने पिछले 4 हफ्ते में, सही है, तो अब वो मेरे लिए हाई वैल्यू है. लेकिन आपके लिए हाई वैल्यू है क्या, पहले इसको तो आप डिफाइन करें. उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि हम ऑडियंस के अंदर थोड़ा सा एक डीप डाइव ले लेते हैं और हम देख लेते हैं कि यार कितने ज्यादा जो है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ऑडियंस बनाने के. जस्ट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट रिसोर्स. एफिनिटी, गूगल एफिनिटी. Okay, I got it. चार्ट किधर चला गया? ओके, guys, can you see the screen, this Excel file? Okay, so Namra, आपने क्वेश्चन किया था गालबन. Yes. Okay, Namra, And so yes, ये, we can see your screen. yeah, okay, so this is basically a list of affinity main segments, sub segments, and then sub segments too, which was provided by Google to me. So these are all the possible affinities that you can target from on Google, which is actually present. I don't have the Facebook affinity list with me, but obviously with Facebook campaign manager can, you can just go and check it out as well. So for printed t-shirts, I would say somewhere in the maybe hobby फैशनिस्टा आपके पास ये हो सकता है, आउटडोर एंथुजियास्ट, मे बी शटरबग सीकर्स. सो इस तरह की आपके पास मतलब ऑडियंसेस अवेलेबल होती हैं टू टारगेट. अगेन दीज आर द एफिनिटी ऑडियंसेस. एंड मैं हमेशा एक बात करता हूँ, वो ये कि जब आप अपनी कैंपेन चला रहे हैं और इनिशियल फेज के ऊपर हैं, तो कीप योर ऑडियंस एज ओपन एज यू कैन, so that you can generate as much data as you can, and that data can be refunneled. जैसे कि अभी एक सवाल किया अजीम ने, सेगमेंट ऑडियंस कैसे कर सकते हैं मेटा के अंदर. सो देयर द हाई वैल्यू ऑडियंस. फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी बेस पे आप you can actually segment your high value audience on basis of frequency, on basis of recency, on basis of their purchase history, or I would say any conversion event history.
अगेन जिसने ऐड टू कार्ट करा हुआ है, जिसने परचेज करा हुआ है, जिसने आइटम लिस्ट को व्यू करा हुआ है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड द लिस्ट गोज ऑन, राइट? So there are multiple ways. If you guys want me to just dive into that thing as well, I can just go there as well. But obviously this will take a lot of time as well, and we are actually very short on time right now. Okay, so moving on. जल्दी से मैं वापस उस स्लाइड पे आ जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपको इस वाली स्लाइड के अंदर कोई और सवाल है किसी को भी? Can you please brief again the difference between DMP and CDP? Okay, so data management platform and consumer data platform ये इस तरीके से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल DMP जो है वो किसी, लेट सपोज मैं अगर एक MMP हूँ, अगर मैं मैं गैप्स फ्लाई हूँ, और मेरे पास एक आई एम बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बेसिकली कैटरिंग द एट्रीब्यूशन फॉर माय क्लाइंट्स। ये मैं मल्टीपल जगह से, टिकटॉक से, फेसबुक से, और गूगल से, यूएससी से, और बहुत सारी जगह से मेरे पास ना ऐप इंस्टॉल्स आ रहे हैं। तो मेरा अपना एक डीएमपी है, बीइंग एन ऐप, जहाँ पे मैं उस डाटा को स्टोर करके समझने के उसको, उस डाटा को स्टोर करके वो कर रहा हूँ, सेगमेंट कर रहा हूँ, सही है, और उसकी एट्रीब्यूशन को डिसाइड कर रहा हूँ। तो ये एक मेरा पर्सनल डीएमपी है। अब जो मेरा सीडीपी है, जो मेरा डाटा पर्सनली बाय किया, टैक्सोनॉमी क्या है, ये सकता हूँ सीडीपी के ऊपर। Recently we were working with Oracle Blue Sky का data warehouse, लेकिन now we are basically moving from Blue Sky to segment। तो segment भी एक data warehouse की type है, एक basically एक समझ लें एक CDP है या क्या लें DMP है। तो in this way you can differentiate the DMP। So CDP comes at the very end, जहाँ पे client control होता है, सही है, एक कंपनी को अपना कंट्रोल होता है। तो जहां जहां वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, जहां जहां वो एट्रीब्यूशन उनकी जा रही है, वो सारी जगह से डाटा क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं और अपने एक सीडीपी के अंदर जाके पार करते हैं, जिसके बाद वो डाटा क्या करते हैं, वो रिटारगेटिंग के लिए आगे पीछे भेजते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एप्स फ्लायर वगैरह होते हैं, रहे होते हैं, और उनका जो जो है वो सिलेक्ट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, सेगमेंट करते हैं ऑडियंस को, और उसके बाद ऑडियंस को सेगमेंट करने के बाद आगे भेजते हैं रिटारगेटिंग के लिए। जी, इसके अलावा और अगर कोई अभी ये समझ नहीं आया तो फिर और मुझे बताऊं, या और कोई सवाल इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू दिस स्लाइड, और वी कैन जस्ट मूव ahead as possible। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तकी, आप इस पे थोड़ी बता दीजिएगा कि बॉटम ऑफ फनल पे आप किस ऑडियंस को प्रेफर करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और दूसरा ये कि जो चर्न ऑडियंस है उसको किस तरह दोनों प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो गूगल हो या मेटा हो। Okay, so are you asking this for app, or are you asking this for normal product, maybe फॉर नॉर्मल ई कॉमर्स प्रोडक्ट। सही है। तो चर्न ऑडियंस को पहले तो आप डिफाइन करेंगे, आप चर्न ऑडियंस बोल किसको रहे हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं एक और यहाँ पे एक शेयर कर लेता हूँ फॉर बाकी लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लेट्स सपोज चर्न ऑडियंस मैं बताता हूँ, चर्न ऑडियंस वो ऑडियंस होती है, नहीं होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन होती है चर्न ऑडियंस की। लेट्स सपोज वो है जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आई और उसने परचेज नहीं करा, कि मेरी ऐप इंस्टॉल तो कर ली है लेकिन ऐप के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, ऐप के कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो वो मेरी चर्न ऑडियंस है। अब अजीम ने ये सवाल करा है कि बॉटम फनल के लिए और चर्न ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। सो वेरी सिंपल। सबसे पहले ये बताएं अजीम कि आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है, पुराना 6 महीने का या साल का डाटा? जी, इस सपोज कर लेते हैं कि डाटा मौजूद है, अवेलेबल है। सपोज कर लेते हैं कि एक साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, सही है, और उसके बाद आपको अब दोबारा से एक
लेट्स सपोज एक बॉटम फनल कैंपेन फॉर कंसिडरेशन रन करनी है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आपके पास ऑडियंस है, या कह लें कि लेट्स सपोज अगर कोई आपके पास कोई कोई लाइक यू नो पीआईआई जनरेटेड ऑडियंस है, या उसके लुकअलाइक्स पड़े हुए हैं, तो आप अव्वल तो वो सारा डाटा आपके लिए जो है ना वो रेलिवेंट हो जाएगा। सही है जी। बॉटम फनल के लिए, कंसिडरेशन के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये भी बता दें। अब इसको आप कन्वर्जन पे कर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। ओके, सो कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है फिर ये आपका, फिर ये बिल्कुल ही ओके परचेज है आपका। परचेजेस के लिए लेट्स सपोज आपके पास तो सबसे पहले तो आपके पास 6 मंथ्स के सारे PIIs आप निकलवा लें। सही है, परचेज निकलवा लें आप फोन नंबर्स में भी, एक तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर आप क्या करें, इसकी लुक लाइक बना लें 1 to 3% पे। ये गोल्डन रूल होता है, इसको फॉलो कर लें। अगर नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली यू कैन जस्ट चेंज यू नो द। अच्छा, इसके अलावा आप एक काम है, आप अपने जितने भी कन्वर्जन इवेंट्स हैं, so this was for 180 days, obviously it depends कि आपके पास डाटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन लाइक अज्यूमिंग कि आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो कन्वर्जन इवेंट्स के लिए आप निकालें सारे आपके पास ऐड टू कार्ट्स, जितने भी आप कन्वर्जन इवेंट्स है, मैं वो लिख नहीं रहा, मे बी यू नो ऐड टू कार्ट्स मेनली, प्लस चेकआउट्स, प्लस परचेजेस, सब कुछ सब आपने उठाया और आपने इसको उठा के जनाब टारगेटिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया। सेकेंडली, अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर परचेजेस की, सो यहाँ पे मैं ब्रॉड ऑडियंस भी इस्तेमाल करूंगा। सही है, तो एक जो इसकी स्ट्रेटेजी होती है वो ये भी होती है, इसके अलावा आप एक काम करें, आप टॉप 5 to 15% की जो ऑडियंस है आपकी, ये भी आप बना सकते हैं परसेंटाइल ऑडियंस, ये भी आप बना लें। सही है जी, या लें। अब एक काम करें, इसको सबको, इन सारी ऑडियंस को आप करें with your affinity interest based segments. So what will it do basically? एक तो आपके पास ये वाली रिटारगेटिंग ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी बन गई है, प्लस आपके पास जो आपका ऑडियंस का सेगमेंट होगा जब आप अपनी एफिनिटीज वगैरह भी डाल देंगे उसके अंदर ना, तो वो ब्रॉड हो जाएगा। तो एक तो वो आपकी यू नो इट कैन एक्चुअली इंक्रीज द चांसेस ऑफ कन्वर्जन एज वेल। सेकेंडली, जब एक नॉर्मल हम लोग को बनाते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी समझ लें कि जब भी कोई कन्वर्जन कैंपेन बनाते हैं तो 18 से 19 एड सेट्स तो नॉर्मली लग रहे होते हैं, राइट। तो इट्स नॉट लाइक कि वो आप 1 2 3 एड्स आएंगे और आप एक्सपेरिमेंट करें उसके बाद जनाब आपकी कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो व्हाट यू डू इज यू एंड अगेन, सो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव एज वेल ना, तो आई ऑलवेज एडवाइज दिस टू माय मीडिया प्लानर्स दैट के ऑलवेज इंक्लूड स्टैटिक उसके अंदर, वीडियो ऑब्वियसली, एंड कैटलॉग होते हैं उसके अंदर, यू नो, सो देयर आर ये 3 ही होते हैं आपके। तो कैटलॉग के अंदर एक कलेक्शन होता है जिसके नीचे कैटलॉग लगा हुआ होता है। तो इन सब के अंदर जो सबसे सस्ती सर्विंग होती है वो इसकी होती है, स्टैटिक की होती है। सही है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिटारगेटिंग एंड यू देयर आर हैवी रिटारगेटिंग सेगमेंट्स ना, तो आई वुड एडवाइज कि यू गो विद द स्टैटिक फॉर्मेट। क्योंकि क्यों, वाई, आप उनको आपके ब्रांड के बारे में पहले से पता है। सही है, एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो जानते हैं आपके ब्रांड को। यू गो एंड रन कैटलॉग एज वेल, यू गो एंड रन कलेक्शन। से मेरी मुराद है नॉर्मल जो कैरोसेल होते हैं आपके प्रोडक्ट कैरोसेल ऐड जो होते हैं, उससे मेरी मुराद।
बहुत ज्यादा चांस है कि उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, लेकिन अगेन सिंस इसकी सर्विंग बहुत सस्ती होती है तो क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट पर परचेज होगी ना वो बहुत नीचे आ जाएगी इससे। अगेन यू विल बी लाइक कपलिंग अप विद द ऑडियंसेस एंड विद द, सो यार मैं इस पे बहुत सारी ऑडियंसेस लिख सकता हूँ, लेकिन इट विल जस्ट ऐड ऑन टू द टाइम। द जिस्ट ऑफ इट कि पुराने डाटा को जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, जितनी भी ऑडियंस अवेलेबल है, जो भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, तो मुझे लगता है कि बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक सम कस्टम ऑडियंसेस विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट एंगेजमेंट। सही है, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक खास प्रोडक्ट की वीडियो डाली थी और 10 वीडियोस थी, तो तुम उस हर वीडियो के अगेंस्ट एक एंगेजमेंट ऑडियंस बना सकते हो उसकी। सही है, तो उसको प्री टारगेट कर सकते हो अपने उस वीडियो के ऐड के लिए। सही है, तो दिस इज अ होल लाइक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी, जो कि आप जब एक आपके जहन में होता है कि आप सेल एक कैंपेन बेसिकली लॉन्च करेंगे, तो ये अब ये पूरी बैक एंड की वर्किंग होती है कि उसकी यार आपने 6 महीने पहले वीडियो बनानी है, या साल में जितनी भी सेल्स करनी है आपने पूरा उसका कैलेंडर बना लिया कि कौन कौन से मंथ के अंदर कौन कौन सी चीज जो है वो बूस्ट होनी है, और उसके बाद कहाँ का जो है उसको लेके जाना है। सही है जी, तो ये है साइंस। अब मुझे बताओ अगर इसमें कुछ और ऐड करवाना है तुमने, वैसे साइंस तो यही है। नहीं, बिल्कुल ऑल क्लियर है मेरे एंड पे, और बल्कि आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। सही, बस एक एडवाइस ये है कि हमेशा कभी भी एफिनिटी के बगैर ऑडियंस ना बनाओ। उसकी वजह ये है कि एफिनिटी के बगैर अगर ऑडियंस बनाओगे तो तुम एक अच्छा चंग मिस कर दोगे। होता ये है कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग टाइम पे एक्टिव होते हैं। सही है, तो बेहतर है कि हमेशा जो भी ऑडियंस बनाओ वो अलग भी बनाओ और उसके बाद टेस्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक एड सेट होगा, लेट सपोज अगर हम एड सेट्स की बात करते हैं, तो एड सेट्स तुम्हारे पास एक एक एड सेट होगा, people who have purchased in last 30 days। लेट्स सपोज ये एक तुम्हारा एड सेट है। तुम्हारे पास दूसरा एड पता है क्या होगा, people who purchased in last 30 days plus people who are interested to purchase XYZ product। और तुम एक और काम कर सकते हो, इसको पूरे को एज इट इज उठा के इसका एक और एडिटर बना सकते हो, प्लस people who have add to cart in last 180 days। तो ये अब करते रहो एक्सपेरिमेंट इसके साथ, इस पे तुम खींच दो, ऑडियंस डालते रहो उसके अंदर और ऑडियंस खींचती, एक्सपेक्टेशन का रूम ज्यादा होगा तुम्हारे पास, उससे तुम्हारे पास विनिंग ऑडियंस निकल जाएगी, और तुम जब ऑप्टिमाइज करोगे अपने एडसेट्स तो इवेंचुअली यू विल गेट टू अ वेरी लो कॉस्ट कस्टमर। तो दैट्स अबाउट इट, दैट्स द साइंस ऑफ इट यार। परचेज की कैंपेन जो होती हैं वो हैक्टिक इसलिए होती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बार बार एडसेट बनाने और बंद करने पड़ते हैं, मुस्तकिल ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो गाइज आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस डिस्कशन, बाकी लोग भी अगर इंटरेक्ट करें तो और अच्छा लगेगा। Azim, thank you so much. Azim, so much for acting. एक और Really, I क्वेश्चन really है, appreciate it. इफ यू अलाउ। जी 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 आप जी जी प्लीज प्लीज, क्वेश्चन ये है, आप ही आप कर रहे हैं, आप कर लें कुछ। बेसिकली क्रिएटिव को आप किस तरह से डिजाइन करते हैं फॉर टॉप ऑफ फनल या मिडल ऑफ फनल या बॉटम के? जो मेरी एज पर अंडरस्टैंडिंग है कि कैंपेन आएंगे वो क्रिएटिव्स की तरफ ज्यादा चला गया है। हम इसके ऊपर काम करें जो हमारा जो मीडिया बाइंग वाला सेक्शन है। तुम्हारे ओके, सो लेट मी रीफ्रेज योर क्वेश्चन के यू यू आर सेइंग के हमारा बहुत ज्यादा जो वो मतलब समझ लो, दोबारा अपना क्वेश्चन पूछोगे काइंडली, सॉरी बुरा नहीं मानना यार। क्रिएटिव नहीं, के बारे में तुमने क्या बोला? क्वेश्चन मेरा ये है कि जब से एडवांटेज पर शॉपिंग कैंपेन मेटा पे आई है तो मोर फोकस हमारा जो है वो इन टर्म्स ऑफ कैंपेन प्लानिंग वो क्रिएटिव की साइड पे रादर देन मीडिया बाइंग का जो हमारा जो एक एड्स मैनेजर सेक्शन होता है उसके ऊपर कि ये ऑडियंस बनाना या ऑडियंस सेगमेंट करना। मोर जो हमारा फोकस है वो क्रिएटिव स्ट्रेटजी क्रिएटिव डिजाइनिंग के ऊपर चला
अच्छा सही, ये मेरी एक स्लाइड मैंने बनाई थी अभी कुछ अर्सा पहले। लेट मी शो दिस टू यू, मैं जरा इसको ही प्लेस कर दूं। ओके, सो दिस इज बेसिकली दिस स्लाइड इज यू नो, ये वैसे तो ऐप के लिए है, लेकिन दिस इज अबाउट के होता क्या है। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बिड एंड एक्विजिशन ग्राफ है ये, सही है? दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन दिख रही है ग्राफ वाली, बिड एंड एक्विजिशन की? सर स्क्रीन जो विजिबल है वो शॉर्ट टर्म रिटेंशन लिखा हुआ है इसमें, और जी जी बिल्कुल विजिबल। यहाँ पे आ रहा है, अगर सही है वो एक थोड़ा सा वो शॉर्ट टर्म टेंशन लॉन्ग टर्म टेंशन को थोड़ा सा साइड में रखो। यहाँ पे ग्राफ मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैं तुम्हें ना बता सकूं, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी इज इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली क्रिएटिव स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन खाली मेटा के ऊपर या क्यों मेटा के ऊपर थोड़ा सा मैं इसके सवाल करके थोड़ा सा ना ब्रॉड पे लेके जाऊंगा। होता क्या है कि अब ये समझ लो कि आपके पास वीडियो एसेट्स हैं, आपके पास एक वीडियो एसेट है, स्क्वायर फॉर्मेट का वीडियो एसेट है। अब मैं पहले फॉर्मेट बात करूंगा, उसके बाद उस क्रिएटिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा, तुम्हारी जो तुमने सवाल करा है। There's a question, guys, can you feedback for this session? Okay. So, पहले हम बात कर लेते हैं कि यार तुम्हारे पास जो क्रिएटिव एग्जीक्यूशन है, सॉरी जो फॉर्मेटिंग है, तो देयर इज अ रीजन के गूगल का जो डिस्प्ले जीडीएन जो होता है, डिस्प्ले नेटवर्क जो होता है, इसने कोई 18-19 किस्म के अलग अलग बैनर के साइज दिए हुए। होता क्या है कि जब आपकी जब क्रिएटिव आपके पास बहुत ज्यादा अलग अलग फॉर्मेट्स के होते हैं, तो होता क्या है कि वो हर जगह पे जाके ना प्लेस हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा इन्वेंट्री टैप होती है। सही है जी, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक खास किस्म क्रिएटिव है जो एक खास जगह पे जा सकता है, हर किस्म के एड स्पेस के अंदर वो घुस सकता है। तो एक खास किस्म क्रिएटिव, तो होता क्या है कि जब वहां पे ज्यादा इन्वेंट्री टैप होती है, तो जब ज्यादा इन्वेंट्री टैप होगी, ज्यादा प्लेटफॉर्म पे जाएगा, ज्यादा ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर जाएगा, आप डीबी से रन कर रहे हैं, तो आपके वो ज्यादा है ऑडियंस बेस को टैप करेगा। जब ज्यादा ऑडियंस बेस को टैप करेगा तो ज्यादा ऑडियंस आपका आपका जो है वो देखेगी, स्ट्रक्चर देखेगी, आपका प्रोडक्ट देखेगी, और उसके बाद वो एक्विजिशन जो होगी, मतलब कन्वर्जन जो होगी, वो ज्यादा होगी और लो कॉस्ट में होगी। लेकिन जब उस कॉस्ट को आप फॉर एग्जांपल इनिशियली ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको अपने ऐड को स्प्रेड करने के लिए बिड बढ़ानी पड़े, राइट? क्योंकि बिड ऑब्वियसली आप एक खास बजट के साथ आ रहे हैं, एक आपके लाख रुपए बजट है। अब आपको मैंने बोला कि 3 4 8 9 प्लेटफॉर्म पे चले हैं, तो वो आप 1 लाख रुपए के 5,000 के बजट पे नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब आप बजट बढ़ाते हैं, आपकी बिड बढ़ाते हैं, तो आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ इन्वेंट्री को टैप करते हैं। दैट मल्टीपल लेयर्स ऑफ इन्वेंट्री बेसिकली enable you to tap more conversions and tap more audience base by virtue of tapping more inventory basically. So again, एंड नाउ अब वो बॉटम फनल है। अब लेट्स सपोज तुम कन्वर्जन के लिए चला रहे हो और तुम शुरू में स्टैटिक चला रहे हो, जो कि तुम्हारे पास कंसिडरेशन का लेट्स सपोज 3 तुम्हारे पास है। मैं इसको एक काम करता हूँ, लेट मी रीशेयर द स्क्रीन एंड स्विच टू वर्ड। यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन के अंदर लेट्स सपोज तुम्हारे पास अपर फनल है, और उसके बाद तुम्हारे पास मिड फनल है, उसके बाद तुम्हारे पास बॉटम फनल है। सो अपर फनल के अंदर लेट्स सपोज तुम वीडियो ऐड, उसके बाद तुम मिड फनल के अंदर अगेन वीडियो ऐड दिखा दो, बट नॉट फुल लेंथ एक्चुअली। तो वीडियो ऐड दिखा दो, उसकी 10 सेकंड की कॉपी दिखा दो, सही है? या आई वुड से 5 सेकंड की कॉपी आइडियल, 5 सेकंड कॉपी दिखा दो उसकी, ठीक है, जस्ट टू बिल्ड द रिकॉल प्लस गेट द डायरेक्शन, जो कि मे भी हो सकता है क्लिक में भी, और उसके बाद तुम्हें एक स्टैटिक भी दिखा दो उसके साथ, सही? कॉपी तुम्हारी थी क्रिस्प कम्युनिकेशन होती है एंड कॉल टू एक्शन बेस होती है।
यहाँ पे आप बताते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स बेसिकली फुल लैम्प के अंदर। यहाँ पे आप प्रोडक्ट प्राइजेस को एंड इंसेंटिव्स को, एंड उसके बाद बॉटम फनल आता है जिसके अंदर आप कॉल टू एक्शन, हार्ड कोर, मतलब आप प्रोडक्ट आप खरीद लें, तो ये आता है। तो इस तरीके से होता है ब्रो फॉर्मेट प्लस कम्युनिकेशन, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्रिएटिव स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल करने के लिए। तो दिस इज समथिंग विच हैज टू बी देयर। ओके, सो दिस इज आई थिंक pretty much answer your question. Azim, are you satisfied with the answer? Yes, definitely. Thank you so much for this detailed answer. No problem. Is there any other question, or we can just, since we are very short on time, I would say. Okay, so Namra, can you confirm if we have some more minutes, or it's just a wrap up now? I guess we can take one more question and then we can wrap up. Okay, fine. Yes, please, Zuhaib. Do you have any question, please? Taqi, can I ask? जी, please. इसमें इसका ताल्लुक कुछ इस डिस्कशन से नहीं है, मैं जनरल अगर पूछ लूं, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी और आई ग्रो एज अ मीडिया बायर, मतलब मुझे इसमें क्या क्या स्किल्स में क्या क्या ऐड ऑन करना चाहिए अपने अंदर कि मैं एक बेटर से बेटर इन टर्म्स ऑफ स्किल एक्वायर कर लूं। Okay, so start reading about the platforms for sure कि कौन कौन से platforms available हैं। इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा जो फुकदान मुझे नजर आता है डिजिटल मीडिया बायर्स में, वो ये है कि they are very, they are lacking like anything with when it comes to the media innovation. मीडिया की इनोवेशन जो है ना वो इस वक्त बहुत जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। सही है, तो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन, I would say, let's not write it. I would say, like, start reading about the platforms and start, gathering as much data as you can on the platform. क्या platform पाकिस्तान में available है advertise करने के लिए, किन किन जगहों पे आप advertise कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फॉर्मेट से जहाँ पे advertise हो सकते हैं। Spotify क्या कर रहा है, Snack Video क्या कर रहा है, TikTok क्या कर रहा है, Facebook Meta के ऊपर कौन कौन से ads available हैं, गूगल के ऊपर कौन से एड अवेलेबल है, कौन सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं, रिसोर्सेज हैं जिसको आप ऑप्टिमाइज करके एक बेटर कैंपेन स्ट्रेटजी बना सकते हो। आप if you want to media buyer and if you want to learn more about media planning and strategy, obviously it's a number game, there has to be a number game, but